Okay, dear student, in this lecture we are going to start new topic, that is final account. So in final account we have to study about the three different account, that is the trading account, profit and loss account, and balance sheet. And for your knowledge, one thing I would like to make clear: balance sheet is not an account, balance sheet is an statement. Balance sheet is a statement. So today first we are going to study trading account. One simple rule I am telling you for the preparation of trading account: all direct expenses and direct losses will come to the debit side of trading account, and all direct income will come to the credit side of trading account. Now, what is direct expenses? What is direct losses? Whenever expenses, any expenses which is directly related with the production of goods and services, that is called the direct expenses. यहाँ पे जो भी expenses दिया है, freight, custom duty, wages, coal, gas, fuel, royalties, factory expenses, ये सब direct expenses है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री से डायरेक्टली, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है. सो दिस पॉइंट यू शुड कीप टू योर माइंड. ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव टू पुट टू द डेबिट साइड टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ऑल डायरेक्ट इनकम लाइक सेल, it will come to the credit side of the trading account. So this is format. Opening stock will come to the debit side. Purchases will come to the debit side of trading account. And in purchase, we have to less purchase return. And after less, remaining amount, lefted amount, we have to put to the outer column. And then after that, so this is in the same sequence we have to put the account. In the same sequence we have to put the details, like opening stock. Always in every problem we have to put at first, and then below opening stock we have to show the purchases, and from purchases we have to less purchase return. So this sequence we must not forget. In every problem, every time we have to use this sequence only, and all these details we will get in trial balance. So from that trial balance we have to find out the things, and in the same sequence we have to make the effect. So first, at the first we have to, in first line we have to write to opening stock, and below that we have to write purchase, and from purchase we have to less purchase return, and then after that direct expenses we have to write. So these are the details about the direct expenses. Freight and carriage inward, we have to put amount to the outer column. Then custom duty is there, amount we have to put direct to the outer column. And then wages is there, wages we have to put amount direct outer column. Coal, gas, fuel, amount directly we have to put outer column. Royalties, outer column amount. Factory expenses, amount outer column. And this is the balancing figure, gross profit. If there is the balance to the debit side,
we have to represent it by the gross profit. And if there is a balance to the credit side, it is represented by the gross loss. And credit side, we have to start by sales. And in sales, we have to less sales return. Sales amount we have to put inner column, and sales return also we have to put inner column, and the amount left after minus from the sales return, the amount left we have to put to the outer column. One thing is very important, sales return, it is also known as the return inward, and for purchase return it is also known as the return outward. This is important thing, we must not forget this, because sometime in trial balance it is given, it is not directly given purchase return. In trial balance it may be given return outward. So we must understand return outward is a purchase return and return inward is a sales return. And then after that, buy goods distributed as free sample, जिसको हम लोग advertisement बोलते हैं. It will come to the credit side to the trading account. Buy goods taken by proprietor for personal use, जिसको हम लोग drawing बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे drawing नहीं लिखना है, यहाँ पे as it is लिखना है buy goods taken by proprietor for personal use. Buy closing stock and remaining balance, this is balancing figure by gross loss carried down, like that. So this trading account we have to tally, and after tally if the balance came to the debit side we have to represent to the gross profit. If the balance came to the credit side we have to represent it by the gross loss. Then after that there is small sum in the textbook, wages 16,000. Of course wages is a direct expenses. So it will come to the debit side of trading account. Royalties is also direct expenses. So it will also come to the debit side of trading account. Sales return, just now I told you, sales return, that is the return outward, return inward. So sales return we have to less from the sales, it will come to the credit side. Goods withdrawn by Sangeeta for personal use. So whenever any partner withdraw goods from the business for personal use, we have to show this credit side of the trading account. So it will come to the credit side of the trading account. Factory rent, this is direct expenses, so it will come to the debit side of the trading account. Stock on 31st March 2019. So this is the closing stock. So closing stock we have to show to the credit side. And then stock on 1st April 2018. This is opening stock. 1st April को जो रहता है stock उसको हम लोग opening stock बोलते हैं. So opening stock we have to show this opening stock to the debit of trading account. Sales we have to make the effect to the credit side of trading account. Purchases, debit side of the trading account. Purchase return we have to less this purchase return from purchase. Manufacturing expenses, this is direct expenses, so it will come to the debit side of the trading account. Motive power, this is direct expenses, so we have to make the effect to the debit to the trading account. And freight, this will also come to the debit to the trading account. Now the same thing I am going to solve, so put care on that. So first thing we have to start it by the opening stock. As I told you just now,
always we have to start trading account by the debit side. The first item will be to opening stock. And opening stock now it is given 22,000. And then below opening stock we have to show the purchase, two purchases. Purchases amount is given 1,90,000. So this 1,90,000 we have to show to the inner column. Actually I not prepare inner column here, but if we prepare inner column it is more better, but if we are not preparing the inner column we can make the effect inner side than the outer column. Purchase 1,90,000 less purchase return. परचेस में से परचेस रिटर्न हमेशा माइनस करना है. Purchase return it is given 6,400. ये 6,400 1,90,000 में से माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 1,83,600. And then credit side we have to make the effect of sales. First in first line by sales का अमाउंट दिया है 3,80,000, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 3,80,000. इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है 24,000. 24,000 इसमें से माइनस कर देंगे और 24,000 माइनस करके आउटर में आएगा 3,56,000. उसके बाद ये 3 स्टेप हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखने का है. डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में पहला जो होगा इफेक्ट वो ओपनिंग स्टॉक का होगा और फिर ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेस का इफेक्ट होगा और क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट सेल्स का होगा. उसके बाद में हमारा जो ऑर्डर है इधर उसके नीचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लॉसेस और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसका डिटेल आएगा. तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. रॉयल्टीज, वेजेस, मजदूर को उसका मजदूरी दिया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कि वेजेस लेबर को देते हैं और लेबर जो है फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम करता है तो उसका जो वेजेस है, उसकी जो मजदूरी है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाती है. इसके लिए हम लोग वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं. 16,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद में रॉयल्टीज, रॉयल्टीज जो होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि कोई इनोवेशन किया इंडस्ट्री में, टेक्निकल इनोवेशंस हुआ तो उसके लिए कंपनी जो है, जो इंजीनियर्स हैं उनको रॉयल्टीज देती है. रॉयल्टीज
11,000। प्रोडक्शन में न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया अगर कोई, तो उसके लिए कंपनी उनको रॉयल्टीज देती है, तो वो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये एक्सपेंसेस, देयरफॉर इट विल कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में सेल्स रिटर्न हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्ट कर दिया है। गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज, तो इसका इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। बाय गुड्स विड्रॉन बाय संगीता अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 16,000। उसके बाद में फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का भाड़ा दिया, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। $4,200। उसके बाद में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में आएगा। ये बात याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट में आता है, ये ध्यान में रखना है। फाइनल अकाउंट में ये चीज भूलना नहीं है सबको। फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज वी हैव टू शो टू द डेबिट side of trading account, and closing stock we have to show to the credit side by closing stock। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 36,000। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक हमने ये इफेक्ट मार दिया है ओपनिंग स्टॉक का। उसके बाद सेल्स का भी इफेक्ट हमने मार दिया है 3,80,000 का। परचेस का भी इफेक्ट हमने मार दिया है डेबिट साइड में। उसके बाद में फैक्ट्री रेंट हो गया, परचेस भी हो गया है, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर दिया, वो भी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इट विल कम टू द डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400 है। उसके बाद में मोटिव पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। $16,000। देन फ्रेट भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। 7,400। तो ये जो डायरेक्ट हमने अमाउंट देखो यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक 22,000, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया 1,83,600, वेजेस 16,000, रॉयल्टीज 11,000, फैक्ट्री रेंट 4,200, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400, मोटिव पावर 16,000 और फ्रेट 1,39,400, सॉरी फ्रेट 7,400। उसके बाद में क्रेडिट साइड में 3,56,000, 16,000 एंड 36,000। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, इसका टोटलिंग करेंगे, टैली टोटल लिखेंगे। टैली टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, इट विल कम 4,08,000। 4,08,000 दोनों साइड में लिखेंगे।
अब ये 4,08,000 में ये डेबिट साइड का जितना 22,000 से लेके 7,400 तक इसको हम लोग प्लस करेंगे, जो भी टोटल आएगा उस टोटल को 4,08,000 में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,39,400। तो डेबिट साइड में बैलेंस आया तो इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। Now after trading account, then second account is that is the profit and loss account. And what is difference between trading account and profit and loss? In trading account, I told you that is the account related with the all direct expenses and losses and direct income and gains. And profit and loss account is related with the all indirect expenses and losses and all indirect income and gains. So I told you what is the direct expenses. The expenses which is directly related with the production, that is the direct expenses. So and what is indirect expenses? The expenses which is not directly related with the production, that expenses is called the indirect expenses. So the expenses in profit and loss, we have to make the effect of that expenses which is indirect, or that losses which is indirect losses there. So in profit and loss account there is two side, debit side and credit side. As you people are looking, debit side we have to start by the balance. If trading account have the gross loss figure, that gross loss figure means it will come to the credit side of trading account, that we have to transfer to the debit side of the profit and loss account. And if in trading account there is a debit balance, that is gross profit, so that gross profit we have to transfer to the credit side of profit and loss account. That we have to start it by the balancing figure profit or loss. And then below all the details are given about the indirect expenses and losses. So first there is the salaries and wages. Remember one thing I am telling you here, started the expenses is being started by salaries. So we return the salaries and wages to the profit and loss account debit side. लेकिन अगर यही यहाँ पे दिया है सैलरीज एंड वेजेस, तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है. लेकिन अगर यही वेजेस एंड सैलरी दिया होता, अगर ये वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे. याद रखना इस बात को. स्टार्टिंग का देखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखा है. अगर स्टार्टिंग में वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर स्टार्टिंग में सैलरीज है या सिर्फ सैलरीज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. ये ध्यान देना है. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये जो है, अगर यहाँ पे ये फैक्ट्री रेंट होता, सिर्फ रेंट है इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे हैं. लेकिन अगर ये फैक्ट्री रेंट होता तो हम लोग इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते थे. ये ध्यान देना है आपको. ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान रखना है. तो ये रेंट है तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है तो इसको हमने डेबिट में लिखा है. टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी का अमाउंट दिया तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया. तो ये जो सब्सक्रिप्शन दिया, पेड किया इंश्योरेंस को, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डायरेक्टली जो है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है. ये इसका कोई रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ. तो ये बैंक चार्जेस डेबिट में आया.
डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन। यहाँ पे याद रखना है, अगर डिस्काउंट ही दिया है सिर्फ, तो वहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में डिस्काउंट दिया है तो फिर वो डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और अगर वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता था। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कट दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट गिवन। जब बिजनेसमैन किसी को डिस्काउंट देता है तो वो उसका लॉस होता है, तो इसके लिए वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। इट विल कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ये जो है ये ऑडिटर को दिया जाता है, कंपनी ऑडिटर को पेड करती है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए जो चार्जेस होता है ऑडिटर का, उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। तो ऑडिट फीस भी जो अमाउंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑडिट फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर यूज। द लाइफ ऑफ एसेट्स गेट डिक्लाइन and that decline value of the property of the asset, that is called the depreciation. तो डेप्रिसिएशन भी लॉस होता है, और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे ही चार्ज होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जो फिक्स एसेट यूज करते करते उसका जितना लाइफ स्क्रैप हो गया तो उतना से उसका वैल्यू भी कम हो जाता है, तो वो वही रिड्यूस वैल्यू जो है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये लॉस है, तो इसके लिए लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। यहाँ पे देखो 3 डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का और फर्नीचर का, तो तीनों भी डेबिट में आएंगे। उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पे एक्सपेंसेस डायरेक्टली, इससे हमको पता चलता है ये खर्चा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब आपने अभी पेटी कैश बुक में देखा है कि कुछ भी ऑफिशियल यूज के लिए अगर किसी को बस फेयर दिया, ऑटो रिक्शा फेयर चार्जेस पेड किया, तो वो सब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी ये एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो इट विल कम टू द डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी जो है नॉर्मली हम लोगों ने पेटी कैश बुक में अभी इसके पहले वाले टॉपिक में देखा, सर ने आपको जो भी अकाउंटिंग हेड्स बताए थे, जो कि जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गया और कैरियज एंड कार्टेज हो गया। तो ये सारे जो अकाउंटिंग हेड्स हैं ये नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आते हैं, ये ध्यान देना है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। उसके बाद में इंटरेस्ट पेड किया, ब्याज दिया तो ये लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। लॉस बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल गया, प्रॉपर्टी जल गई, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एक्चुअली पैकिंग एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस पैकेजिंग में होता है, पैकेजिंग करने के लिए उसका पैकेजिंग बॉक्स हो गया या उसके ऊपर प्रिंटिंग चार्जेस जो हो गए, वो सब पैकेजिंग एक्सपेंसेस में आता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कमीशन, ये जो कमीशन है यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, कमीशन पेड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है। तो कमीशन पेड है, ये डेबिट साइड में दिया है, मतलब ये कमीशन पेड है, ये कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स का ये जो ट्रीटमेंट है, ये आपको पूरी तरह से इतना ट्रीटमेंट बाय हार्ट करना है,
ये ट्रीटमेंट आपको एक्चुअली बाय हार्ट ही कर लेना है। और ये ट्रीटमेंट ऐसा है, ओल्ड बैड डेप ऐड न्यू बैड डेप ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये ट्रीटमेंट है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ओल्ड बैड डेप ऐड न्यू बैड डेप ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये ध्यान देना है आपको। एक्चुअली ओल्ड बैड डेप्स कहाँ दिया रहेगा मैं आपको बता देता हूं, ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। न्यू बैड डेप्स कहाँ दिया रहेगा, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। न्यू आरडीडी कहाँ दिया रहेगा, ये भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। और ये ओल्ड आरडीडी कहाँ रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस में रहेगा। तो एक बात ध्यान देना है, जितने भी ओल्ड आइटम है वो ट्रायल बैलेंस में रहेंगे और जो भी न्यू आइटम है वो एडजस्टमेंट में रहेगा। एक्चुअली फाइनल अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट में आपको जो सम आता है वो सम के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया रह जाता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे एक 4 या 5 आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानकारी है, लेजर पोस्टिंग, लेजर कंप्लीट होने के बाद में जब लेजर का हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो वो लेजर का बैलेंसिंग, सभी लेजर का बैलेंसिंग होने के बाद में उसका जो बैलेंसिंग फिगर है हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में जो भी रहता है सब लेजर के बैलेंसेस रहते हैं। तो लेजर के बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं और ट्रायल बैलेंस से फिर हमको पता लगता है कि हमारा अकाउंट में कितनी एक्यूरेसी है। ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो समझो अकाउंट करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस से ही हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, मतलब हमारे पास में लेजर के बैलेंसेस नहीं अवेलेबल है, तो फिर फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता। तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा और वो ट्रायल बैलेंस से हमें फिर फाइनल अकाउंट बनाना है। ट्रायल बैलेंस कैसा रहेगा मैं आपको जब इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस कैसा रहेगा। अभी तो फिलहाल आपको ये ध्यान देना है, ये जो ट्रीटमेंट है बैड डेप्स मतलब जो पैसा डूब गया है, डूबा हुआ पैसा, जो कस्टमर ने पैसा दिया नहीं है, कस्टमर ने पैसा दिया नहीं है वो डूबा हुआ पैसा है, उसको हम लोग ओल्ड बैड डेप बोलते हैं। तो वो बैड डेप्स है, तो ओल्ड बैड डेप में न्यू बैड डेप्ट ऐड होगा और न्यू आरडीडी ऐड होगा। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप। एक्चुअली ये जो रिजर्व है कंपनी मेंटेन करती है, इसका प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविजन मेंटेन करती है, उसको हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट बोलते हैं। ये प्रोविजन कहाँ से मेंटेन किया जाता है, प्रॉफिट्स में से मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट से ही कंपनी इसको मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ आरडीडी ही नहीं, ढेर सारे प्रोविजन कंपनी करती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी करती है, प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ फंड। तो ये अलग अलग प्रोविजंस कंपनी अपने प्रॉफिट में से करती है। तो ये आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, इसको आप रट्टा मार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओल्ड बैड डेप ऐड न्यू बैड डेप ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब उसके बाद में अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो वो नेट प्रॉफिट होगा, जैसे कि हम लोग ने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आया था तो वो ग्रॉस प्रॉफिट था। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है बैलेंस तो वो नेट प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट। उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, चाहिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बगल में बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि ये नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ध्यान देना है हमको, ये डिफरेंट है बैलेंसिंग फिगर में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग इसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं। उसके बाद में अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये मैंने आपको पहले ही बताया
कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो हम लोग उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया तो उसको डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। ये ध्यान देना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। और अब क्रेडिट साइड के बारे में मैं आपको बता दूं, क्रेडिट साइड में सभी इनडायरेक्ट इनकम आते हैं। ऑल इनडायरेक्ट इनकम वी हैव टू पुट टू द क्रेडिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी इनडायरेक्ट इनकम, जैसे यहाँ पे बाय रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये इनकम है। भाड़ा मिला तो ये क्रेडिट साइड में आ गया। कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये क्रेडिट में आ गया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला तो ये इनकम हो गया, तो वो भी क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, दिस इज आल्सो इनकम, तो ये क्रेडिट में आ गया। मिसलेनियस इनकम, ये भी क्रेडिट में आ गया। मतलब ये सारे जो इनकम हैं, डिटेल्स ऑफ इनकम वी हैव टू पुट टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको हम लोग नेट लॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो लॉस है, तो नेट लॉस भी जो है वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होता है। अब यहां पे एक सम दिया हुआ है। अब ये सम से हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसमें हमको दो अकाउंट बनाने का है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया था ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, ये ट्रायल बैलेंस है, दिस इज द ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये हमको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, एग्जाम में ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और इसको देख करके हमको ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो मैंने अभी आपको जो बताया, यहाँ पे ध्यान सिर्फ दो बातें देखना है कि इसमें से जो डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ध्यान देना है। तो सभी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेजेस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। परचेस मैंने अभी आपको बताया, ये भी ट्रेडिंग में जाता है, और परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है। कैरियर्स इनवर्ड भी ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, ये ध्यान देना, ये भी ट्रेडिंग में, इसका भी इफेक्ट ट्रेडिंग में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग में सबसे पहला आइटम है, फर्स्ट लाइन में यही लिखना पड़ता है हमको, ओपनिंग स्टॉक, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। तो इतने आइटम सब ट्रेडिंग के हैं, वेजेस भी, परचेस, कैरियर्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न और ओपनिंग स्टॉक, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसके बाद में सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। रॉयल्टी ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। बैटिव्स, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरियर्स आउटवर्ड, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखो, ये कैरियर्स आउटवर्ड और कैरियर्स इनवर्ड, ये दोनों को याद रखो। कैरियर्स इनवर्ड ये ट्रेडिंग में जाता है, और कैरियर्स आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस को जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। कमीशन पेड, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब उसके बाद में क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न, ये ट्रेडिंग में जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये परचेस में से क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद में सेल्स भी ट्रेडिंग में जाएगा और वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा।
और कमीशन रिसीव्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, रेंट रिसीव्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि डेबिट साइड का जो भी आइटम है वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ही है। तो चाहे वो जैसे मैंने बताया ये ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। तो और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड का आइटम है तो वो क्रेडिट में जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है। तो आज मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे।